Good morning to you all. Students, I have some problem in my eyes, but students, we have to complete our syllabus. So students, I am going to solve some questions of miscellaneous exercise of the chapter complex numbers and quadratic equations. Okay. Question number 1 is very simple question. You can solve, but in question number 2, students, for any two complex numbers z1, z2, we have to prove real part of z1 into z2 will be equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. See the solution. Let z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2. स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 कंसीडर कर लेते हैं और z1 is equal to a1 plus ib1, z2 is equal to a2 plus ib2. Okay, then what will be z1 z2? z1 into z2, it will be equal to a1 plus ib1 into a2 plus ib2. Okay, students, after multiplication it will be a1 into a2, a1 a2. Okay, a1 into ib2, I a1 b2. Okay, plus I b1 into a2 plus I into I square b1 into b2. Okay, and it will be a1 a2 and here I is common in both, so we can say it will be I into a1 b2 plus b1 a2. And students, we know that the value of I square is minus 1, so I square b1 b2 will be minus b1 b2. Okay, and this can be written as a1 a2 minus b1 b2 plus I into a1 b2 plus b1 a2. Okay, students, here what is real part of z1 z2? z1 z2 का रियल पार्ट क्या है? हमने राइट कर लिया समथिंग प्लस आई इंटू समथिंग. तो जो आई से फ्री वाला टर्म होता है वही आपका क्या होता है? रियल पार्ट होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी रियल पार्ट ऑफ z1 z2 is equal to what? a1 into minus b1 b2, a1 a2 minus b1 b2. Students, what is a1? See the complex number z1. What is real part of z1? z1 का रियल पार्ट क्या है? a1. तो आप यहाँ चाहें तो राइट भी कर सकते हैं. क्या? Here real part of z1 is equal to a1 and imaginary part of z1 is equal to b1. यहाँ आप राइट कर सकते हो. रियल पार्ट ऑफ z2 is equal to a2 and imaginary part of z2 is equal to b2. So students, we can say here a1 is real part of z1, real part of z1 into what is a2? a2 is real part of z2, real part of z2 minus what is b1? Imaginary part of z1, imaginary part of z1. What is b2? Imaginary part of z2.
So students, we can see real part of z1 into z2 will be equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ऐसे ही कोई भी प्रॉपर्टी आप प्रूव करने के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे, जितने ज़रूरत पड़ेगी उतना कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐसे एज्यूम करके उसको शो कर सकते हैं। ओके, see the third question. It is very simple question. You have to write in standard form, that is in the form of a plus iv. Question number 4 is very important question. See the solution of question number 4 here. In question number 4, if x minus iy is equal to a minus ib upon c minus id, then we have to prove that square of x square plus y square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। Students, here x is equal to x minus I y is equal to root a minus I b upon c minus I d is given. Then we have to prove square of x square plus y square is equal to a square plus b square upon c square plus d square। See the solution of this question 4, given that x minus iy is equal to a minus ib upon c minus id। Okay, but students, in the proof we have to prove in LHS x square plus y square, and it can be possible after taking modulus, because modulus of x minus iy will be x square plus under root x square plus y square। Okay, so students, right, taking mod or modulus on both sides, then what will be happen? Mod of x minus iy will be equal to mod of root a minus ib upon c minus id, and it will be equal to under root square of real part plus square of imaginary part, that is square of minus y, and students, this can be written as mod of a minus ib upon c minus id to the power 1 upon 2. Okay, because we know that square root means power 1 upon 2, and it will be equal to x square plus y square, and students, this can be written as mod of a minus ib upon c minus id to the power 1 upon 2. According as the property of the complex number, if we have z to the power n, mod of z to the power n, then it can be written as mod of
z to the power n. By this property we can say it can be written as mod of a minus ib upon c minus id to the power 1 upon 2. मीन्स पावर और मॉड यहाँ पे ट्रांसफर हो जा रहे हैं, ठीक है। एंड दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू mod of a minus ib upon mod of c minus id to the power 1 upon 2. Also we have another property of complex number, another property z1 upon z2 whole to the power. Here we have to find mod of z1 upon z2, sorry. Then it can be written as mod of numerator upon mod of denominator. By using this property we can say mod of a minus id upon mod of mod of a minus id upon c minus id can be written as mod of a minus id, that is mod of numerator upon mod of denominator, that is modulus of c minus id. Okay, and this will imply x square plus y square is equal to mod of a minus id under root a square plus square of minus b, then it will be square of b. So we can say it will be under root a square plus b square, and mod of c minus id is square root c square plus d square, and here power 1 upon 2. Okay, students, write down here square root also. ये स्क्वायर रूट छूट गया, इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस रूट को आप पावर 1 upon 2 भी राइट कर सकते हो। स्क्वायरिंग on both sides, then what will happen, it will be x square plus y square, and it will be a square plus b square upon under root c square plus d square. Again squaring on both sides, again squaring on both sides, then what will happen, here in LHS square of x square plus y square, and in RHS a square plus b square upon c square plus d square, और यही हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। स्टूडेंट्स एक बार और इसको देखते हैं, दे रखा था x माइनस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई बी। हमको क्या प्रूव करना था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन दिया गया है इसको राइट किए। अब देखिए कि लेफ्ट में स्क्वायर आ सकता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ सकता है जब हम दोनों साइड मॉड लेंगे, तो हम दोनों साइड मॉड लेंगे। अब मॉड की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स कि अगर मॉड ऑफ z टू द पावर n लिखा गया है तो इट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ z टू द पावर n। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर 1.2 था वो आपका आउटसाइड ऑफ द मॉड चला जाएगा इस प्रॉपर्टी से। अब स्टूडेंट्स अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होल पे मॉड है तो इसको हम लोग सेपरेटली मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड ऑफ डिनोमिनेटर राइट कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी से इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे वो आपका जो मॉडुलस पता करने का फॉर्मूला है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उससे पता करना है।
अंडर रूट का मतलब आप जानते हैं पावर 1/2, यहाँ भी पावर 1/2 है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, ये आपका। फिर अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ से ये रूट हट जाएगा और हमारा x² + y² = a² + b² अपॉन c² + d² हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, आप प्रूव कर लेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, see question number 5, convert the following in polar form. First, convert the following in polar form. First, 1 + 7i upon square of 2 - I. Second, 1 + 3i upon 1 - 2i. Students, here we have to convert this given complex number in polar form. So students, first of all, we shall convert this complex number in the form of a plus iv or in the form of x plus iy. See the solution of first part of the question number 5. Given that 1 + 7i upon 2 - square of 2 - I, and students, this can be written as 1 + 7i upon square of a minus b, means square of first plus square of second minus 2 into first into second. Okay, and this can be written as 1 + 7i 4 minus 1 minus 2 to the 4y, and this can be written as 1 + 7i 4 minus 1 3 minus 4y. Okay, and this can be written as आपको बताया गया था कि हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में i दिख रहा है, कुछ को जैसे हम लोग रेशनलाइज करते थे वैसे ही क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, i मल्टीप्लाई करेंगे इसका 1 into 3 3 1 into 4i plus 7 into 3 plus 21i 7 into 4 28i into I square upon a minus b into a plus b, square of first minus square of second, and this can be written as 3 plus 4i plus 21i 25i I square is minus 28 upon
square of 3 9, square of 4 16, square of I square. Okay, so students, this complex number 1 plus 7i upon square of 2 minus I will be equal to 3 minus 28 minus 25 plus 25i upon 9 value of I square minus 1 into minus plus 1 means it will be plus 16, and then it will be equal to 25 plus 25i upon 9 plus 16 25, and it will be equal to minus 25 upon 25 plus 25i upon 25, and it will be equal to minus 1 plus I. So students, we have to write minus 1 plus I in the polar form. We have to convert minus 1 plus I in the polar form. Okay, let this is Z. Okay, then it will be equal to Z. So students, we have to convert the complex number Z, that is minus 1 plus I in the polar form. So students, first of all, find R and R can be determined by, then R will be equal to mod of Z, that is equal to square of minus 1 plus coefficient of I, that is imaginary part, square of 1, and it will be equal to 1 plus 1 is equal to 2. Okay, and then find tan alpha. Tan alpha is equal to mod of imaginary part upon mod of imaginary part upon real part. It will be equal to mod of 1 is equal to 1, and this implies that tan alpha is equal to tan 45, that is pi by 4, and this will imply alpha is equal to pi by 4. Then what will be argument, students? Since Z is equal to minus 1 plus I lies in second quadrant, then argument of Z will be equal to pi minus alpha, that is pi minus pi upon 4, and it will be equal to 4 pi minus pi, 3 pi upon. Okay, then we can write Z is equal to minus 1 plus I will be equal to, or in bracket cos theta plus I sin theta, or cos theta plus I sin theta. Students, here R is root 2 cos, what is argument, 3 pi upon 4 plus I sin 3 pi upon 4, and that will be आंसर. यह इस दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, पोलर फॉर्म है. आप ऐसे सेकेंड को भी क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे. ओके,
Question number 6 to 9 be very simple. You have to solve some equations, some quadratic equation by using the quadratic formula or Sridharacharya formula. In question number 10, we have to find mod of some given quantity and already z1 and z2 भी given. तो आप क्या करेंगे, z1 z2 की वैल्यू पुट कर लेंगे, रियल इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे और फिर कोसेंट फंक्शन का जो मॉडुलस है उसको आप क्या राइट कर सकते हैं, मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. वहाँ पे आप रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उसको पता कर सकते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 11 आप क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सॉल्व कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 2 जैसे सॉल्व कर लीजिएगा. z1 z2 की वैल्यू दिया गया है, पहले z1 z2 अपॉन z बार पता कर लीजिएगा, कंजुगेट दिया गया है z1 का, फिर उसको रेशनलाइज कर लीजिएगा, फिर z1 जो रियल पार्ट होगा उसको आप राइट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट पता करना है, आप कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान ही है. एक्स और वाई जो है एक कह रहा है कि अगर एक कॉन्जुगेट आप इसके इक्वल है तो उसका कॉन्जुगेट एक्स माइनस वाई आई वाई इंटू 3 प्लस 5 आई जो है उसके इक्वल -6 माइनस 24 आई का कॉन्जुगेट राइट करके इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, राइट में जो है उसको ऐसे ही रहने दीजिएगा. फिर लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उसको कैसे हम लोग पता करते हैं, ये रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, वैसे करेंगे सिंप्लीफाई हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15 में मॉडुलस पता करना है, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस आई बी के फॉर्म में बना लीजिए, फिर उसका मॉड पता कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 16 में ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आइए देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 if x plus I by q is equal to u plus ib, then we have to show that u upon x plus v upon y is equal to 4 into x square minus y square. Here students, it is given that cube of x plus I y is equal to u plus ib. Then we have to show u upon x plus v upon y is equal to 4 into x square minus y square. First of all, expand LHS. Cube of a plus b, cube of first plus cube of second plus 3 into first into second in bracket first plus second, और इसको आप ऐसे राइट कर x cube and this can be written as I cube y plus I into 3xy x plus I y is equal to u plus ib. Okay. This can be written as x cube, value of I cube, I square into I, value of I square minus 1 into I, then it will be equal to minus I. I cube की वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है, तो माइनस आई इंटू वाई क्यूब प्लस मल्टीप्लाई करा लेंगे आई इंटू 3x square y plus I into I square 3xy square is equal to u plus ib, and this implies that x cube minus iy cube plus I 3x square
y I square value -1 minus 3xy square is equal to u plus iv, and here real parts be x cube minus 3xy square and imaginary part be 3x square y minus y cube u plus I. Comparing real parts and imaginary parts on both sides, then what will happen? This implies that x cube minus 3xy square will be equal to u. This is imaginary part of LHS. This is imaginary part of this is real part of LHS, and this is real part of RHS. This is imaginary part of LHS, and this is imaginary part of RHS. So we can say 3x square y minus y cube will be equal to v. Okay. Here students, x is common. Then we have x square minus 3y square, okay, is equal to u. And here students, y is common. Then we can write here y 3x square minus y square is equal to v, and this can be written as x square minus 3y square is equal to u upon x, and this can be written as 3x square minus y square is equal to v upon 1. This is equation number first, and this is another equation नंबर सेकेंड. अब स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट को सेकेंड को ऐड कर दें तो अपना LHS मिल जाएगा. सो राइट डाउन एडिंग 1 and 2 तो क्या है? x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दोनों का पहले LHS ऐड कर देंगे, फिर RHS u अपॉन x प्लस v अपॉन y. दिस इम्प्लाई दैट x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू u अपॉन x प्लस v अपॉन y. And here students, 4 is common, then it can be written as 4 into x square minus y square is equal to u upon x plus v upon y. और students इसको आप ये राइट कर सकते हैं u upon x plus v upon y is equal to 4 into x square minus y square. और वही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था. तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे एक्सपेंड करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कंपेरिजन करते हुए इसको आप प्रूव कर सकते हो. ओके. See question number 17. It is very interesting question, students. Here in this question, if alpha and beta are different complex number, with modulus of beta is equal to 1, then we have to find mod of beta minus alpha upon 1 minus conjugate of alpha beta.
Okay. See the solution. Students, we have to find beta minus alpha, 1 minus alpha beta. Okay. Students, we know that beta into conjugate of beta will be equal to square of magnitude of beta. So students, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फायदा क्या होगा, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आपको एक रूल बताया गया था, जेड इंटू जेड। ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो क्या प्रॉपर्टी है, जेड को अगर आप मानते हो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो जेड बार मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड ए माइनस आई बी। जब आप मल्टीप्लाई कराओगे जेड जेड बार तो क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ए प्लस बी स्क्वायर एक्चुअल में है क्या है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग करें, उसके लिए आप बीटा बार से कॉन्जुगेट ऑफ बीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। एंड दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट अपॉन बीटा कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ बीटा से कॉन्जुगेट ऑफ बीटा माइनस अल्फा बीटा बीटा कॉन्जुगेट। ओके, और यहां से आप इसको राइट कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ बीटा कॉन्जुगेट ऑफ अल्फा। और स्टूडेंट्स बीटा बीटा कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट Z1 Z2 conjugate sorry Z1 or Z conjugate of Z will be equal to magnitude of Z square। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप बोल सकते हैं। और ये स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा बीटा। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि अगर Z1 अपॉन Z2 का हमको मॉडुलस पता करना हो तो इसको हम लोग सेपरेट करके राइट कर सकते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। तो ऐसे ही मॉड ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉड ऑफ डिनोमिनेटर हम लोग कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स बीटा का जो मॉड है वो दिया गया, वो कितना है, 1 है। तो इसके जगह क्या राइट कर लेंगे, 1। अब स्टूडेंट्स न्यूमरेटर को हम लोग कुछ ऐसे राइट कर सकते हैं, कि आपका क्या हो जाएगा, बीटा से आपने मल्टीप्लाई करा लिया, इसके लिए आपने इतना पहले क्वांटिटी दी गई थी, हम सोच रहे थे कि बीटा बीटा कॉन्जुगेट क्या आ जाए, 1 आ जाए, उसके लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा, ऐसा हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी वैल्यू 1 राइट कर दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है, एक इस प्रॉपर्टी से Z1
Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका मैग्नीट्यूड Z1 के मैग्नीट्यूड और Z2 के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी से न्यूमरेटर को हम लोग अलग अलग राइट कर लिए और डिनोमिनेटर आपका इतना हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज mod of बीटा माइनस अल्फा इंटू mod of बीटा। यहाँ पे आप चाहें तो जो नंबर था पहले आप उसको राइट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहीं पे आपको समझना है, एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी से हम लोग राइट कर सकते हैं बीटा माइनस अल्फा होल का कॉन्जुगेट। और ये प्रॉपर्टी आपका होता है कि Z1 माइनस Z2 अगर है होल का कॉन्जुगेट है तो इसको हम लोग सेपरेट भी राइट कर सकते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 माइनस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। उस प्रॉपर्टी से अगर अलग अलग लिखा गया है तो हम होल का कॉन्जुगेट राइट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये क्या हो सकता है, मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ बीटा। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉडुलस होता है, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो आप इसके जगह पे बीटा माइनस अल्फा का भी मॉड लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मॉडुलस आएगा मैग्नीट्यूड आएगा वो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। देख लीजिए उसके कॉन्जुगेट का भी और सेम कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। तो इससे आपका ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और मॉड ऑफ बीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, मॉड ऑफ बीटा बार इसकी वैल्यू पता नहीं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको बताया कि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का दोनों का जो मॉड होता है मैग्नीट्यूड होता है आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यह आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा के इक्वल, और वो ऑलरेडी दिया गया है 1। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। थोड़ा सा आपको इसमें समझना है कि ये बीटा गायब कैसे होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कॉन्जुगेट ऑफ बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो उसका स्क्वायर बनेगा, ये गायब हो जाएगा। फिर ये जो प्रॉपर्टी है इससे न्यूमरेटर को अलग अलग राइट कर लेंगे। फिर जो ये प्रॉपर्टी है इससे होल का हम लोग कॉन्जुगेट राइट कर देंगे, और इस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होता है। फिर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा। फिर इसी प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू इसके इक्वल, और देन इट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज हियर ऑलरेडी इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Find the number of non-zero integral solution of the equation. Find the non-zero integral solution of the equation 18. Question number 18. We have to find the number of non-zero integral solution of the equation 1 minus I to the power x is equal to 2 to the power x. स्टूडेंट्स यहाँ एक इक्वेशन दे रखा है और इस इक्वेशन में आपको क्या पता करना है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन पता करना है। कैसा सॉल्यूशन, नॉन जीरो इंटीग्रल, मतलब वह इंटीजर हो, ठीक है, लेकिन वो जीरो ना हो, ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो दिया गया इक्वेशन ऐसा गिवन दैट स्टूडेंट्स आप जानते हैं इसकी वैल्यू, यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड पता करना है, क्या होगा √1² प्लस आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है -1,
इसका स्क्वायर टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, और इसको आप क्या राइट कर सकते हैं, अंडर 1 प्लस 1 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। इसको क्या राइट किया जा सकता है, 2 टू द पावर 1/2 बिकॉज दिस इज अंडर 2, या आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं अंडर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 to the power x, and this implied that 2 to the power 1/2 to the power x is equal to 2 to the power x। पावर का पावर है, आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power x/2 is equal to 2 to the power x। दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, देन व्हाट विल हैपन, x/2 will be equal to x, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, x will be equal to 2x, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x minus x will be equal to 0 and then we can say x will be equal to 0। तो स्टूडेंट्स इसका एक ही सॉल्यूशन आया और वो क्या आया, x is equal to 0। बट स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड हियर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। जीरो को छोड़कर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसको काउंट करना है। ये कई सॉल्यूशन आ रहा है और वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, इसको हमको काउंट नहीं करना है। इसको छोड़कर मतलब जीरो को छोड़कर जो इंटीग्रल सॉल्यूशन आ रहे हैं उनको काउंट करना है। तो यहाँ पे जीरो को छोड़कर कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, एक भी नहीं, एक आ रहा है और वो भी क्या, जीरो। जब क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन है, वी हैव टू फाइंड नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या करेंगे, हियर number of non-zero integral solution is equal to 0, एक भी नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 में आप क्या कर लेंगे, दोनों साइड मॉड ले लेंगे और एक जो मॉड की प्रॉपर्टी में आपको बताया था, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। मतलब वो दोनों का जितना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्रोडक्ट में है, सबका अगर एक बार मॉड लिए तो अलग अलग उनके मॉड के टर्म में राइट किया जा सकता है। फिर उनका मॉडुलस पता करेंगे तो ये LHS RHS के इक्वल हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन वगैरह में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। कह रहा इफ 1 प्लस, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 20, इफ 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I टू द पावर m is equal to 1, then find the least positive integral value of m। स्टूडेंट्स कह रहा है कि अगर 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I टू द पावर m है और वह 1 के इक्वल है, तो m के जगह पे हम सबसे छोटा कौन सा इंटीजर राइट करेंगे। क्लियर, तो आइए देखते हैं वो भी कौन सा छोटा कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर राइट करेंगे, उसी को हमको क्या करना है, पता करना है। उस सॉल्यूशन देखिए, गिवन दैट 1 plus I upon 1 minus I to the power m is equal to 1। स्टूडेंट्स इसको रेशनलाइज करें, 1 plus I upon 1 minus I and this can be written as, रेशनलाइज करें 1 plus I upon 1 plus I, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 plus I से मल्टीप्लाई करें, तो जो इसका न्यूमरेटर वाला पोर्शन है मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 into 1 1, 1 into I
I into 1 I into I square, denominator a square minus b square, a square minus b square, because a minus b into a plus b here, and this will be equal to 1 plus I 2i, value of I square minus 1 square, value of I square minus 1 minus into minus plus, and then it will be equal to 2i upon 2, that is 2i upon 2 to the power m is equal to 1, 2 से 2 cancel हो गया, and here I to the power m is equal to 1. This implies that m will be equal to, students, I to the power कितना रहता है कि उसकी वैल्यू 1 होता है, I to the power 4 की वैल्यू 1 होता है, I to the power 16 की वैल्यू 1 होता है, यानी वो का मल्टीपल रहे तो उसकी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. क्लियर? तो इसमें I to the power 8 रहे तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. I to the power 12 रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या राइट कर सकते हैं कि m आपका वो हो सकता है 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट. क्यों? अगर 4 रहेगा तो I to the power 4 की वैल्यू 1 हो जाएगा. इसका पावर अगर 2 कर देते हैं तो फिर 1 का पावर 2 यानी 1 हो जाएगा. इसका पावर 3 करते हैं यानी 12 रहेगा तो भी 1 आएगा, 4 आएगा तो भी 1 आएगा. लेकिन इन सब में लिस्ट चाहिए हमको. क्या चाहिए? लिस्ट. सो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू और राइट डाउन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m विल बी क्या हो जाएगा, एंड दैट विल बी I का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, वो होगा, और I to the power अगर 4 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा. मीन्स ऐसा होगा, m to the power 4 होगा तो ऐसा होगा, m to the power 4 होगा तो ऐसा होगा, यदि m to the power 4 होगा तो ऐसा हो जाएगा. क्लियर? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उसको आप ध्यान देंगे इस पर. ओके. और पूरे एक्सरसाइज में अगर कोई भी आपको समस्या होती है देन यू आर फ्री टू आस्क. ओके. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.